my father was not very comfortable sharing that my mother was carrying such a disease. In rural areas में क्या होता है ना, women generally have the tendency to hide. I was transferred last month, and till then we had a number of 35,559 women. I had gone to meet her also in the hospital. तो उसने वही बोला, मैडम मेरा तो ऑपरेशन हो गया था अभी 6-7 महीने पहले ही हुआ था, मुझे कैसे हो सकता है. Women should not feel कि it is something very dreadful. It's very cumbersome economically and mentally for the family that I cannot go out and tell them. Even for some certain people to say स्तन cancer is also very, पता नहीं उनको क्या शर्म आती है. Women health हमेशा पेरिफेरी भी आती है कि ठीक है भाई, है तो बेयर कर लो, कुछ नहीं है, थोड़ी दिन के लिए है, गांठ है, चली जाएगी. In the first part of our conversation with Miss Manisha Avhale, we explored her inspiring journey through the UPSC Civil Services exam, where she balanced her studies with her family's health struggles, especially her mother's battle with breast cancer. We saw how these challenges reshaped her perspective on life and service. But her story didn't end here. In the second part, we turned to Project Nidan, an initiative that is very close to Ms. Avhale's heart, as it is born out of a personal setback when her mother was diagnosed with breast cancer. Manisha transformed her pain into a powerful grassroots movement, impacting countless women in rural India by raising breast cancer awareness and offering vital screenings. October is celebrated as Breast Cancer Awareness Month, and today we will discuss how Project Nidan came to life, the challenges it faced, and the lives it continues to transform. What is Project Nidan? Project Nidan is basically early diagnosis and treatment of breast cancer. Nidan basically means diagnosis. And when my mother was detected with breast cancer, she was in stage 2, but she could have been detected earlier. Like stage 1 में ही जब उनको पेन था, रैश थी, जो भी था, whatever symptoms that she was going through. And because there were so many taboos that were under that women are attached to, तो उससे क्या हो जाता है कि फिर breast cancer as a disease, when women do come forward, are very late, or sometimes don't even come forward. The family do not even tell anybody. They are not very comfortable sharing. Personally, for me also, my entire family, my father was not very comfortable sharing that my mother was carrying such a disease. And when she underwent chemotherapy, she could not her, but majorly my family, my father, he was not very comfortable going out. So इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे लगा कि when I became CO जिला परिषद, जब health was one of the things under me, तो उसी टाइम आई वॉज लाइक कि ब्रेस्ट कैंसर इज समथिंग दैट आई वुड वांट टू वर्क अपॉन, एंड स्पेशली इन रूरल एरियाज जहाँ पे women are, it is so rampant also. The more I delved into it, it became so, it was one of the major highest detected cancer among women. Yeah. So after I think after oral, that's all, second biggest cancer. Yeah. तो वही इसीलिए तो and it is very easy. Let me tell you, Project Nidan is not something extraordinary that I thought I was doing, because जो non communicable disease है, NCD program of रूरल हेल्थ मिशन का जो है अपना, उसमें कवर्ड है कि हाउस टू हाउस सर्वे है, उसको गैप उसको एनालिसिस करना है, एंड देन इट नीड्स टू बी ट्रैक्ड एंड डिटेक्टेड एंड पास्ड ऑन टू SDH लेवल पे. विमेन हॉस्पिटल्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बट नोबडी कम्स फॉरवर्ड, नोबडी टेक्स दिस सीरियसली, और पायलट बेसिस पे भी हम वो कर नहीं पाते हैं. तो मुझे लगता है इसीलिए उसको थोड़ा मिशन मोड बनाना, उसका डर हटाना बहुत जरूरी था. एक बार जैसे कि हमें पता है कि स्वच्छ भारत अभियान में भी क्या हुआ था, एक पुश मिला था, उसके बाद इट बिकेम लाइक कि हाँ ऐसा होना चाहिए. आई थिंक दिस इज व्हाट इज नीडेड, पुश इज नीडेड, एंड स्पेसिफिकली वी आर डीलिंग विद अ सेट ऑफ कम्युनिटी इन द सेंस कि विमेन एज अ कम्युनिटी, इफ यू लुक अपॉन, तो उसमें क्या हो जाता है, विमेन जनरली वांट टू कम आउट, दे वांट टू टेल, that was my experience. Right. So हाँ, तो मुझे वही लगा कि प्रोजेक्ट निदान is something for them and they are going to drive it. And personally for me also, my mother, I think I was never tensed. I did not think something abrupt or abnormal was happening
विथ माई फैमिली या मेरी मॉम को कुछ अलग हुआ है ऐसा मुझे कभी लगा नहीं, बिकॉज माई मॉम वॉज वेरी स्ट्रांग. she never let us feel in that manner कि मुझे कुछ बहुत बड़ा हुआ है, या फिर कीमोथेरेपी में जब उसके उनके बाल झड़े तो she was okay with it, like it so happened कि हाँ ठीक है, मतलब it was so normal, it was so like as ordinary everyday business था वो हमारे लिए. तो उनको देख के हमें और अच्छा लगता था कि शी इज डूइंग इट वेरी स्ट्रांगली. तो लॉट ऑफ फैक्टर्स एक्चुअली एंड इट स्टक विथ मी, इट स्टेड विथ मी कि इसके बारे में कुछ करना है, कुछ वी हैव टू रीच आउट टू वुमेन. ऐसा था. हाँ. ओके, तो अभी तक कितनी वुमेन को स्क्रीनिंग उनकी हो चुकी है अभी? हाँ, तो बेसिकली आई वाज ट्रांसफर्ड लास्ट मंथ एंड टिल देन वी हैड अ नंबर ऑफ 35,559 women. Okay. So it's I'll tell you प्रोजेक्ट निदान में क्या है ना, जब मैंने शुरू किया तो आई वाज लाइक कि विमेन के पास जाना है, लाइक वी हैव टू रीच आउट, घर पे जाना है, घर पे उनका स्क्रीनिंग होना चाहिए, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होना चाहिए. उसके लिए आई केम अक्रॉस अ स्टार्टअप. ऑल्दो उस स्टार्टअप का जो एक्यूरेसी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चला कि इज नॉट वेरी एक्यूरेट, बट इट हेल्प्ड अस रीच आउट टू विमेन इन द सेंस कि वो अवेयरनेस जनरेट, क्योंकि हमारे सोचो कि विमेन को लग रहा है कि महिलाओं को लग रहा है कि एक मशीन आई है जो कि ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करती है. अगर मेरे घर आई है, मेरे द्वार पे, तो ठीक है भाई, आई है, पूरी विमेन हेल्थ टीम ऑफिसर्स है वहाँ पे उनके, तो वो बहुत कंफर्ट भी हो जाता है. तो स्टार्टिंग में हमने पीएचसी में रखा था सपोज, एंड लाइक 3-4 जो जितने भी गांव मिला के एक पीएचसी होती है, तो वी ऑल्सो रियलाइज कि लोग आर नॉट रिपोर्टिंग. सो एम्बुलेंस हमने डेडिकेट की उसके लिए. फिर कुछ अच्छे ब्लॉक से शुरू किया जहाँ पे सम ऑफिसर्स वेरी प्रोएक्टिव थे. फिर उन्होंने हाउस टू हाउस सर्वे किया. फिर आशा ट्रेनिंग ली है हमने. उसके बाद आशा को बताया कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन कैसा होता है व्हेन यू आर रीचिंग हाउसेस, एज कैसे डिटेक्ट करना है कि कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा पाया जाता है, किस तरीके से है. सो एंड आई ऑल्सो डिड नॉट वांट टू पुट एनी बार कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए. तो उस तरीके से हम फिर उसमें जाते गए and it so happened that when Pandharpur, suppose in Solapur, when Pandharpur started doing well, then other talukas like Marsharas है, सांगुला है, जो भी है, सारे जो तालुका है, they also wanted to do well. तो उन्होंने पहले ही आशा के मार्फत फिजिकल टेस्टिंग एग्जामिनेशन करके रखी, लाइन लिस्टिंग ऑफ पेशेंट्स. फिर जब वो पीएचसी में वो मशीन जाती थी, एंड देन दैट थर्मल स्क्रीनिंग वुड हैपन. फिर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद हमारा बड़ा जो गैप था वो था कि मैमोग्राफी एंड बायोप्सी करवाना बहुत जरूरी था, इन द सेंस कि मैमोग्राफी में भी ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए, बायोप्सी में भी है. तो मेनी ऑन्कोलॉजिस्ट स्टार्टेड एसोसिएटेड विद अस कि अच्छा प्रोग्राम है. एक दो बहुत ही अच्छे यहाँ पे डॉक्टर्स हैं who do a lot of social work also, तो वो they came forward and we would refer to them. फिर उसके पेमेंट का इशू आया, तो MJPJ इस महात्मा जन आरोग्य जो योजना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज फ्री फॉर ब्रेस्ट कैंसर. एक्चुअली सर्जरी वगैरह उसमें होता है कवर्ड, बट पीपल हु आर सपोज वी परफॉर्म मैमोग्राफी और बायोप्सी और वो नेगेटिव आता है, तो हु इज गोइंग टू पे फॉर दैट वो. तो उसके लिए हमने ZP से जिला परिषद सेस से प्रोविजन किया था. एंड देन पोस्ट दैट जितना भी खर्चा लगता है टिल सर्जरी, एंड अगर डिटेक्शन से लेके सर्जरी तक का जो आई थिंक सफर है, जो जर्नी है, वो ट्रॉमेटिक नहीं होनी चाहिए. बिकॉज सपोज फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई लगा है कि सपोज गांठ है या फिर सर्टेन सिम्टम्स है, एंड देन वी गो फॉर थर्मल में भी वो हो जाता है, तो फैमिली पे बहुत प्रेशर बिल्ड होना शुरू होता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एड्रेस द इमोशनल एंड मेंटल नीड्स ऑफ द पेशेंट एंड द फैमिली ऑल्सो, कि किस तरीके से उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा, या फिर इट इज नॉट अ बिग थिंग, ऑल्दो किस तरीके से हमें कन्वे करना है, उन पे मेंटल स्ट्रेस नहीं आना चाहिए. तो दैट काइंड ऑफ काउंसलिंग ऑल्सो वी वांटेड टू इन्वॉल्व. तो फ्रॉम डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट हमारे पास एक केस इनफैक्ट ऐसी भी आई जिसमें द पेशेंट वाज ऑलरेडी ऑपरेटेड फॉर स्टेज 1 कैंसर.
ओके। एंड दूसरे उसको सिम्टम जब लग रहे थे, शी डिड नॉट गो टू डॉक्टर, शी डिड नॉट थिंक ऑफ गोइंग टू, शी इज लाइक अभी एक बार मेरी सर्जरी हो गई है तो आई एम ऑलरेडी क्योर्ड, सो देयर इज नो एब्सोल्युटली नो नीड फॉर मी टू गो, अभी मैं फ्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होगी। वो तो रिलैप्स वगैरह का वो जो कंसेप्ट था उसके दिमाग में नहीं था, बट व्हेन वी स्टार्टेड दिस एक्सरसाइज तो वी फाउंड सर्टन सच पेशेंट्स आल्सो, एंड आई हैड गॉन टू मीट हर ऑल्सो इन द हॉस्पिटल, तो उसने वही बोला, मैडम मैं मेरा तो ऑपरेशन हो गया था अभी 6-7 महीने पहले ही हुआ था, मुझे कैसे हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, तो एंड फिर इट सो हैपेंस दैट कि किस कौन से डॉक्टर के पास जाते हो, कितने कीमो है, रेडियो है, एक्सपोजर कैसा है, लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब आई डोंट नो द टेक्निकलिटीज और एनीथिंग अबाउट दिस, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ एक्सपर्ट, बट रिलैप्स के चांसेस होते ही हैं और उस तरीके से। और फिर वो पेशेंट जब हमें मिली तो हमें लगा कि ये भी हो सकता है, सोचो मतलब जिसको ऑलरेडी हुआ है, मतलब जिसको पूरी हिस्ट्री है, वो भी दैट विमेन ऑल्सो बिकॉज ऑफ वॉट एवर मिस कंसेप्ट शी हैज, शी वोंट कम आउट। तो इस तरीके से हमें उस तरह तो निदान एंड देन द जनरल लाइन ऑफ थिंकिंग बिहाइंड प्रोजेक्ट निदान वाज दिस की दैट वी हैव टू रीच अर्ली and we have to get them treated early and we have to make it as a awareness mission की जो कि बाद में विमेन को खुद ही लगे कि अगर ये कहीं पे रुक भी जाता है, सपोज एक पायलट प्रोजेक्ट है या फिर 1-2 साल के लिए हम इसको रन भी कर पाए ढंग से, तो उसके बाद तो रुकना नहीं चाहिए। विमेन शुड नॉट फील कि यू नो इट इज समथिंग वेरी ड्रेडफुल, it's very cumbersome economically and mentally for the family that I cannot go out and tell them. It should become a norm कि ठीक है भाई मुझे इस तरीके से अगर सिम्टम्स आते तो सबसे पहले जाऊँ मैं। राइट। हाँ, you need to address whatever जो उसके misconceptions है about that disease, तो वो I think that was the moral जो एम था मेरा। तो क्योंकि आपने पूरा फील्ड पे काम किया है इस प्रोजेक्ट को लेके, क्या ब्रेस्ट कैंसर को लेके मिथ्स हैं जो कि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है, बहुत मिक्स है, लाइक यू नो आई हैव सीन इट फ्रॉम माय फैमिली, अगर मेरे घर में नहीं होता तो मुझे भी नहीं पता चलता। इनफैक्ट फॉर मी ऑल्सो, सपोज इफ आई एम टू बी, आई वांटेड टू एड, मेरी मम्मी को जब हुआ एंड मैन आई वाज लाइक कि मुझे भी हो सकता है, बिकॉज इन माय हेड आई वाज लाइक हेरिडिटरी होता है, ये मम्मा को हुआ है, हालांकि वी हैड नो हिस्ट्री इन आवर फैमिली, बट फिर जाए तो कैसे जाए, किसके पास जाए, फीमेल डॉक्टर्स होने चाहिए, मेल डॉक्टर के पास, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, स्मॉल थिंग्स, स्मॉल डिटेल्स। सिमिलरली इन रूरल एरियाज में क्या होता है ना, विमेन जनरली हैव द टेंडेंसी टू हाइड एनी डिसीज एंड स्पेशली ब्रेस्ट, वो जो हमारी विमेन बॉडीज को हमेशा एक तरीके से ही हमने रखा है कि वो ढांचे में है उस तरीके से। इवन फॉर सम सर्टन पीपल टू स्टे, स्तन कैंसर इज ऑल्सो वेरी, पता नहीं उनको क्या शर्म आती है, वॉट एवर इट इज, बट यू नो दैट इज द रियलिटी वी हैव टू एक्सेप्ट एंड दिस इज व्हाट वी फेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑल्सो। नॉट मेनी political representatives or thing, they were not very comfortable for you know with coming to camps and everything like that. तो वो भी है taboos with women bodies and especially women are stigmatized, also women are pushed as second citizens in the sense in the family. तुम देखोगे कि women health हमेशा पेरिफेरी पे आती है कि ठीक है भाई है तो बेयर कर लो, कुछ नहीं है, थोड़े दिन के लिए है, गांठ है, चली जाएगी, ऐसा है वैसा है। तो इस तरीके से भी अफेक्ट करता है। विमेन खुद भी सोचती है कि क्यों, मतलब इतना क्या करना है, हो जाएगा ठीक। और फिर जब 4th स्टेज में जाता है ना, शी विल लूज अ ब्रेस्ट, शी विल हैव अ लॉट ऑफ, मतलब नंबर ऑफ कीमोथेरेपीज ज्यादा होगी, रेडियोथेरेपी ज्यादा होगी, रिलैप्स के चांसेस है एंड डेथ ऑल्सो इज मेजर थिंग इन दिस। और हर कोई हर सर्जरी के लिए, हर कीमो के लिए नहीं जा पाता है। तो इन अ लॉट ऑफ सेंस इट मेक्स सेंस कि वी नीड टू कम फॉरवर्ड एट द अर्लीस्ट टू सेव देम। नहीं तो फिर विमेन हेल्थ मैटर नहीं करती कि हमारे लिए, यू नो इट इज एज गुड एज एक्सेप्टिंग कि हमारे लिए विमेन हेल्थ मैटर नहीं करती, एंड स्पेशली मार्जिनलाइज्ड विमेन, बिकॉज यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड विमेन का ही रोल है। अदरवाइज तो अच्छे फैमिलीज के जो होते हैं दे माइट कम आउट वेरी, इन द सेंस कि मे नॉट वेरी इजीली, आई वुडंट से दैट, बट दे हैव एवरी स्कोप ऑफ कमिंग आउट इन अ यू नो सिक्योर्ड एनवायरनमेंट।
राइट। तो मुझे लगता है कि आई वाज वेरी सरप्राइज्ड बाय द, मुझे भी नहीं लगा था कि women कैरी दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, कि दे जस्ट नीड अ नज। एंड मैं बता रही हूँ कि काम ही इतना होता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू एड्रेस वन थिंग, ऑल्दो इट वाज माय मिशन, आई स्टार्टेड द इनिशिएटिव, बट स्टिल आई वाज नॉट सो मच ऑन द फील्ड रिलेटिंग टू दैट, but it still became their movement. It हम्म। still it was very encouraging to see कि they wanted to come out, they wanted to get tested. बहुत ओल्डर वुमेन थे, बहुत कम एज वाले भी थे, हर कोई उसमें अटैच हो रहा था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही द नारी शक्ति दैट वी टॉक अबाउट, ये बहुत छोटी चीजों में दिखती है उसके लिए। और प्रोजेक्ट निदान डिड नॉट बिकम अ मूवमेंट आल्सो, नोबडी न्यू इन द डिस्ट्रिक्ट कि हम ऐसा कुछ कर भी रहे हैं। ओके। इट वाज साइलेंटली गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। तो वी हैव बीन कैरिंग दिस इनिशिएटिव सिंस मार्च आई थिंक, तो मार्च से लेके अब तक 6-7 महीने में टुक अ गुड मोमेंटम विद इन अ वेरी लेस टाइम इनफैक्ट। तो फर्स्ट मंथ में हमें जितने हर्डल्स है उतने उसके बाद उस तरीके से उन्होंने खुद हैंडल किया, तो मेरे लिए वो बहुत आई ओपनिंग था कि मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है इट वाज फॉर देम, इट इज बाय देम एंड फॉर देम, इस तरीके से वो हुआ है। सो एंड इट वाज, वैसे मैं मुझे लगा था कि आई एम ब्रिंगिंग सम न्यू टेक्नोलॉजी, एआई बेस्ड थर्मल पावर स्क्रीन व्हाटएवर, कुछ नहीं है इन द सेंस कि भाई उन्होंने, उनको फिजिकल एग्जामिनेशन करना था, उनको स्क्रीन करना था, उनको डॉक्टर के पास जाना था, वो गए, ऑल्दो कमरसम रहा उनके लिए, बट उन्होंने समझा एंड दे टोल्ड अदर women also, they encouraged them to come out. So माउथ पब्लिसिटी भी उस तरीके से, अवेयरनेस भी उस तरीके से बहुत हुआ। राइट, बिकॉज अब आपका ट्रांसफर हो गया है, तो अब उस इनिशिएटिव का आप कैसे फॉलो अप कर रहे हो? हाँ, so my junior 2020 batch officer is only posted there. So I have told him I have to take it forward. वीकली आढ़ावा भी, मीटिंग भी ले, या फिर उस तरीके से भी प्रेजेंट करे, तो आई होप ही टेक्स इट फॉरवर्ड। एंड जैसे कि मुझे बोला कि इंडिविजुअल बेस्ड सिस्टम नहीं होने चाहिए हमारे कोई भी, जैसे कि मैंने भी वही चाहा कि no matter where I go, in what time frame I go, this initiative shouldn't be this person or this officer based. It has to be for them and by them, like I told. तो इसीलिए मैंने खुद इसमें मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, इसकी वजह से भी कि नो मैटर मेरा कल भी अगर ट्रांसफर होना, तो वो टीएचओ, वो आशा, वो उनको ट्रेन करना है, बिकॉज दोज आर द ग्रास रूट लेवल पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग टू हाउसेज, हु आर गेटिंग थिंग्स डन। तो अगर एक मूवमेंट वो उनकी तरफ से बन जाता है ना, तो नो मैटर हु इज द सीईओ ऑफ जिला परिषद, इट विल गो ऑन। Right. So I hope it is in that manner it is being taken forward. Okay, so October is celebrated as Breast Cancer Awareness Day. So what do you have to say on that? I would say for all women out there, that your bodies, your health, your aspirations, everything matters. So don't put it in the background or at the periphery. उसको साइड में मत रखना, उसको दिल खोल के आप confidently जियो, and it's very needed. We have to come out and in every field, so and such things push us down बहुत तरीके से, हमें लगता है कि किस तरीके से हो सकता है, but in the administration, actually as an IAS officer you get to meet so many people of different backgrounds, different kinds, and it is through them that you understand the nuances of gender inequality. And this was one of the facets of that, and very important in fact, कि तुम्हें कैसे women के aspirations को हम हमेशा कुचल देते हैं, और उनको हमेशा लगता है कि वो उस तरीके का ही काम करेगी, उस तरीके को ही उस तरीके से ही एड्रेस करेगी, but we have to all prove them wrong. So I would want women to come out and help each other and address those concerns. थैंक यू सो मच मैम। काफी कुछ आपने बताया, काफी मिथ्स आपने बस्ट किए ब्रेस्ट कैंसर को लेके। आपकी जर्नी खुद बहुत इंस्पायरिंग रही है, एंड यू हैव डन एक्चुअली अ ग्रेट वर्क इन सोलापुर विद द प्रोजेक्ट निदान। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू।
Muskan, for allowing me this platform to, to reach out to people, the journey of Project Nidan. Thank you so much. As we wrap up this conversation with Ms. Manisha Avhale, we are reminded that Project Nidan is more than just an initiative. It is a beacon of hope for countless women. What started as a response to a mother's battle with breast cancer has blossomed into a powerful movement, transforming lives, raising awareness, and providing life-saving screenings in rural India. We hope that through efforts like Project Nidan, more women will overcome the fear and stigma surrounding breast cancer and come forward to get themselves screened. The silence around this issue must end, and the continued awareness, support, and action we can ensure that early detection becomes the norm. Together, we can break the stigma and save life. So that was all for today. If you liked the video, do not forget to like, share, and subscribe to Indian Masterminds. Until then, I am Muskan Khandelwal signing off.